Hello students, myself Rakesh Misra. This is part 3 video of heredity and evolution. In part 1 video, you have learned the question number 1 to 4 of very short answer and a long answer type question. Actually, this is not in sequence, that may probably very short or long. As you all know, very short answer type question may asked as a 1 marks, but the short answer type question may be 2 to 3 marks, and long answer type question may probably have the 5 marks. So major question or major mark of the question may belong to long answer type question, that is 5 marks question. This is part 3 video of the heredity and evolution. As I have told you, most of students get confused in order to identify the portion of heredity and evolution, but you need to know the portion of evolution is no more in our syllabus. Only from session 2020-21 the hereditary portion is in our syllabus. So you need to identify and recognize the question of heredity. In past video lecture, in past revisional video lecture, you have seen the MCQ type fill in the blanks. It means the concept basis question was totally over, and many of students request me to bring the full revision of long and short type question that has the greater chance to occupy the maximum question from your question paper. Most of the question, about 10 questions, belong to the MCQs or fill in the blanks, but most of the about 90% questions are actually theoretical based, that are actually the 1 marks, 2 marks or 3 marks or the maximum 4 marks questions. So how do the 4 marks, 5 marks or the long short answer type questions can be done? This can be explained, this will be explained by me during the different kinds of revisional video. So don't worry, I have every kinds of weapon for the in order to tolerate the different kinds of problems, but you need to focus the video till the ends. As you all know, the very short and long answer type question play important role in order to bring the maximum marks, in order to gain the good marks. In that series you have learned the question number the part 1 of this series from the question number 1 to 4, part 2 from the question number 5 to 9, and this is part 3 in which I will touch the question number 10 onward. Most of the questions are correlate with each others, but there are so many variety that may probably happen during the previous year question paper. Actually, this is not a question from side book or NCERT. These are actually previously asked questions. So one by one, each and every question is important. I hope you have pen paper in order to note down answer the answer in short, because as a rough copy you should note the answer. Later, after getting the PDF of the question related belong to this video lecture, or in each and every video lecture you will get the PDF of related video and related questions. Then after getting the PDF you should note down the question only, and for the probable answer and the probable explanation you need to have a pen paper in order to note down the important explanation from that questions during the video lecture. So video lecture must be watched till the ends by you, and I hope you are doing so. And along with the question you should write the answer after getting the knowledge of video, after getting the knowledge of that question from the video lecture. So without delay timing, let back over the question number 10, that is the part 3, and explain each and every question after question number 10 including 10, 11, 12 so on, in order to revise quickly, in order to revise thoroughly and provide you knowledge better, along with the full explanation of heredity, along with the full identification of heredity type questions. Now back to question number 10. Now the question number 10, the previous question was, how is equal genetic contribution of male and female parents to ensure the progeny? Actually that question was not a major problems if you have a concept regarding the gamete separation from male or female, that is the 46 gets separated out into 23, and that 23 may be either the 22 plus x or 22 plus y in male and 22 plus x in female. So that is the separation of gametes. So that was explained in previous video lecture. If you are missed, then I revise you.
the gamete separation is essential in order to restore the equal genetic contribution. That was the basic criteria that was happened in previous video lecture, that is in video number 3. This is video number 2. This is video number 3, in which you will learn the question number 10 onward. So without delay timing, let back over the question number 10. The concept of question number 9 is actually available as a part 3 video. The question for part 3 video is available over the channel. If you have any problem to find the channel, mention the comments. I will also provide the link for the channel for the question number 9 along with the comments, along with your comments. So without delay timing, let back over the question number 10. The question number 10 says a blue color flower. Let I zoom it. इसको zoom करके देखेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है. क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्लू कलर फ्लावर, द क्वेश्चन इज द ब्लू कलर फ्लावर plants denoted by capital B is crossed bred with that of white color flower, the plant denoted by small b. State the color of flower you would expect in F1 generation. What must be percentage of white flower in F2 generation if flowers of F1 are self-pollinated? State the expected ratio of genotype capital B and is capital B small b in F2 generation. It means आपको प्लांट्स के कैरेक्टर्स लेने हैं कैपिटल बी के केस में और स्मॉल बी के केस में. ये तो ट्रैट्स हो गए, इसके फिनोटाइप्स बनाने हैं. कैपिटल बी कलर है तो इसको फिनोटाइप इसका ब्लू बनाना है, और स्मॉल बी तो इसका फिनोटाइप बनाना है वाइट, ठीक है. फिर इसका F1 रिजल्ट और F2 रिजल्ट F1 के सेल्फ क्रॉस से निकालना है और F1 रिजल्ट P1 के क्रॉस से निकालना है, ठीक है. और F2 में क्या फाइंड आउट करना है, F2 में फाइंड आउट करना है कि वो जो वाइट कलर फ्लावर है, ठीक है, वाइट कलर फ्लावर है उसका परसेंटेज F1 में कितना है, ठीक है. और फिर क्या जीनोटाइप कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी में F2 में क्या परसेंटेज बन रहा है, ठीक है. तो इसके लिए हम थोड़ा सा क्रॉस करवाएंगे और इसको मैग्नीफाई करके हम यहाँ पे एक वाइट बोर्ड प्रिपेयर कर दे रहे हैं, ठीक है. इसमें आपको चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ अच्छे से, ताकि एकदम से चीज़ें आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ही ना क्रिएट हो, ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं P1 की. P1 में क्या है, एक ब्लू कलर फ्लावर है, ठीक है. ये क्या है, ब्लू कलर फ्लावर है जिसका क्रॉस हो रहा है कैसे, वाइट कलर फ्लावर से, ठीक है. एक ब्लू कलर फ्लावर है जिसका क्रॉस हो रहा है वाइट कलर फ्लावर से. P1 का जो जीनोटाइप है वो जीनोटाइप क्या बन रहा है, P1 का जीनोटाइप ब्लू कलर फ्लावर के लिए कैपिटल बी बन रहा है और वाइट कलर फ्लावर के लिए स्मॉल बी. अब इनके बीच में अगर क्रॉस होगा तो हमको सबसे पहले गैमीट्स बनाना है. इससे एक टाइप का गैमीट्स बनेगा कैपिटल बी और इससे एक टाइप का गैमीट्स बनेगा स्मॉल बी, और दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा तो F1 रिजल्ट आएगा. तो F1 रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है. यानी कि कैपिटल बी स्मॉल बी में तुमको ध्यान देना ये है कि एक कैपिटल बी है और दूसरा स्मॉल बी, यानी कि ब्लू कलर में जो कैपिटल बी है ना वही ब्लू कलर के रिस्पॉन्सिबल है, एक ही जीन्स रिस्पॉन्सिबल है. तो ये हो जाएगा ब्लू कलर, यानी कि जितने भी कलर होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, ऑल ब्लू, ठीक है. ये सब क्या हो जाएंगे, ऑल ब्लू, ये सब हो जाएंगे ऑल ब्लू. यहाँ नहीं लिख रहे हैं हम, यहाँ लिख दे रहे हैं ऑल ब्लू. सब के सब क्या हो जाएंगे, ऑल ब्लू. अब F1 सेल्फ क्रॉस करवा रहे हैं, F1 सेल्फिंग, F1 के बीच में सेल्फ क्रॉस करवा रहे हैं. यानी कि F1 का एक प्रोजिनी क्या आया था, F1 का एक प्रोजिनी आया था कैपिटल बी स्मॉल बी और दूसरा भी आया था कैपिटल बी स्मॉल बी. इससे दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, क्या, कैपिटल बी स्मॉल बी, और इससे भी दो तरह के बनेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी. इसको तो चाहो तो डायरेक्ट क्रॉस करवा सकते हो, या फिर आप जो है क्या करेंगे, या फिर आप जो है पुनेट का स्क्वायर बना के क्रॉस करवा देंगे. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर पुनेट का स्क्वायर ज़रूरी है कि डायरेक्ट क्रॉस ज़रूरी है. देखो आप
कोशिश ये करिएगा पुनेट स्क्वायर के थ्रू ही क्रॉस करवाने की, ठीक है। तो पुनेट स्क्वायर मैं बना दे रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, पुनेट का स्क्वायर भी नहीं बनाने आता है। तो पुनेट का स्क्वायर कुछ इस तरह से बनाते हैं हम, आसानी से वो बन जाता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। ये बन गया पुनेट का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा इधर बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा इधर बढ़ा दीजिए, और बीच में एक लाइन खींच करके आप एक में जो है मेल असाइन कर दीजिए और दूसरे में, ये सिंबल मेल और फीमेल का होता है बेटा, ये सिंबल मेल के लिए होता है, ये सिंबल फीमेल के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें आपको लिखना क्या है, इसमें ये दोनों ट्रैड्स जो दिख रहे हैं ये जीन्स लिख देने हैं। यहाँ पे कैपिटल भी हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल भी हो जाएगा, फिर यहाँ पे कैपिटल भी लिख देंगे, यहाँ पे स्मॉल भी, यानी कि ये क्या है, ये सब है आपके F1 अभी क्रॉस हो रहा है, और इसके बाद यहाँ पे आएगा आपका F2 रिजल्ट, ठीक है। तो अभी इसके बीच में क्रॉस होगा तो क्या होगा, कैपिटल बी, इसके बीच में क्रॉस होगा कैपिटल बी स्मॉल बी, इसके बीच में क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, और इसके बीच में हो जाएगा स्मॉल बी। अब तुमको ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से ब्लू होंगे, ठीक है। तो ये तो होगा तुम्हारा ब्लू, क्योंकि इसमें एक एक जो है कैपिटल बी है। ये भी होगा ब्लू, क्यों ब्लू होगा, क्योंकि एक कैपिटल बी है। ये भी होगा ब्लू, क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक कैपिटल भी है। और ये क्या है, इसमें दोनों स्मॉल है, इसलिए ये हो जाएगा वाइट। यानी कि जीनोटिपिक रेशियो जो है ब्लू और वाइट का, फिनोटिपिक रेशियो, ब्लू इज टू वाइट का रेशियो कितना आ गया आपका, ब्लू इज टू वाइट का जो रेशियो है वो आ गया 3:1 का, ठीक है। और दूसरा जो रेशियो हमारा कैपिटल बी इज टू कैपिटल बी स्मॉल बी इज टू स्मॉल बी का आया है, वो आया है 1:2:1। अब यहाँ पे ये देखो कि दो जो है, ये दोनों जो है कैपिटल बी स्मॉल बी आया है, तो इस वजह से यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी 2 बार आ गया, ठीक है। तो 1:2:1, यानी कि हमारा जीनोटिपिक रेशियो आ गया 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो आ गया 3:1। इसको आप नोट कर दीजिए, ये F2 रिजल्ट है। ये क्या है, F2 रिजल्ट। F1 में क्या हो जाएंगे, ऑल ब्लू, ठीक है। सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो ऑल ब्लू हो जाएंगे, नहीं अभी तो पेरेंट्स से जब क्रॉस करेंगे तो सब के सब क्या हो जाएंगे, ऑल ब्लू, क्योंकि एटलीस्ट 1 जीन्स अवेलेबल लगा, यानी 100% ब्लू। इसमें क्या हो जाएगा, 75% ब्लू होंगे और 25% वाइट होगा, ठीक है। ये फिनोटिपिक रेशियो। और जीनोटिपिक क्या हो जाएगा, ये कैपिटल बी 25% और कैपिटल बी स्मॉल बी 50% और कैपिटल बी स्मॉल बी 25%। यानी कि कैपिटल बी स्मॉल बी का रेशियो कितना आ जाएगा 2, स्मॉल बी का रेशियो हो जाएगा 1 और कैपिटल बी का 1 आ जाएगा। आई होप अब सारे आंसर आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आते हैं। क्वेश्चन ये पूछा है, स्टेट द कलर ऑफ फ्लावर यू वुड एक्सपेक्ट इन F1 प्लांट्स। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका ब्लू। व्हाट मस्ट बी परसेंट ऑफ वाइट फ्लावर इन F2, व्हाट मस्ट बी परसेंट ऑफ वाइट फ्लावर इन F2 जनरेशन इफ फ्लावर्स ऑफ F1 इज सेल्फ क्रॉस। तो इसका बी का आंसर क्या हो जाएगा आपका 25%। ए का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए का आंसर हो जाएगा आपका ब्लू, ठीक है। स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी इन F2 जनरेशन। यानी कि सी का आंसर कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी का रेशियो कितना आ जाएगा, कैपिटल बी इज टू कैपिटल बी स्मॉल बी इज इक्वल टू 1:2। ये 1 आया था, ये 2 आया था, ठीक है। तो ये हमारे तीनों आंसर हो गए। इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी थोड़ा सा लेंदी है, इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इफ वी क्रॉस प्योर ब्रेड टाल डोमिनेंट पी प्लांट्स विथ प्योर ब्रेड ड्वार्फ रिसेसिव पी प्लांट्स वी विल गेट पी प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन, ठीक है। इफ वी नाउ सेल्फ क्रॉस, अब यहाँ लंबा चौड़ा कुछ बताया नहीं, बोला कि अगर हम प्योर ब्रेड पूरे एक डोमिनेंट ट्रेड्स यानी कि पूरा ब्रेड हो, यहाँ पे ये आपको जानना है कि प्योर ब्रेड का मतलब क्या होता है। देखो टाल तो ये भी हो सकता है, यहाँ पे टाल दिया ना,
टाल तो कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, लेकिन प्योर ब्रेड का मतलब नोट कर लीजिए आप लोग, अगर एग्जाम में आ जाए तो उसका जीनोटाइप क्या लिखेंगे, ये बहुत प्रॉब्लम रहता है। प्योर ब्रेड का मतलब ये वाला टाल, और प्योर ब्रेड ड्वार्फ का मतलब ये वाला ड्वार्फ, ठीक है। ये प्योर ब्रेड टाल है और प्योर ब्रेड ड्वार्फ क्या स्मॉल टी ये प्योर ब्रेड ड्वार्फ होता है, ठीक है। तो प्योर ब्रेड टाल और प्योर ब्रेड ड्वार्फ आई थिंक आपको जीनोटाइप बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी हम बना दिए हैं। अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम में प्योर ब्रेड दे देगा तो वहाँ पे आपको जीनोटाइप तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। प्योर ब्रेड टाल का मतलब कैपिटल टी और प्योर ब्रेड ड्वार्फ का मतलब स्मॉल टी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे क्या पूछ रहा है, इफ़ वी नाउ सेल्फ क्रॉस। अब देखो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं तो F1 में क्या हो जाएगा, सब टाल पी प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछ ये दिया नहीं है, पूछा खाली है कि इन दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है, द प्लांट विल गेट पी प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन, ठीक है। तो टाल और ड्वार्फ का कुछ दिया ही नहीं है। इफ़ वी नाउ सेल्फ क्रॉस द पी प्लांट्स इन F2 जनरेशन देन वी ऑब्टेन पी प्लांट ऑफ F2 जनरेशन। अब कुछ पी प्लांट्स को F2 में भी, यहाँ पे भी नहीं क्लियर बताया कि किस तरह का प्लांट्स मिला, F1 में भी नहीं बताया, F2 में भी नहीं बताया, मतलब पूरा लोचा है, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या दे दिया है, व्हाट डू द प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन लुक लाइक। कह रहा है कि F2 जनरेशन के प्लांट्स कैसे दिख रहे हैं, ठीक है, कैसे दिखेंगे। अब F2 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो पता चलेगा। स्टेट द रेशियो ऑफ टाल एंड टू ड्वार्फ इन F2, यानी कि टाल और ड्वार्फ F2 में इसका रेशियो निकालना है, ठीक है। स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट्स नॉट फाउंड इन F2 जनरेशन बट अपीयर्ड इन F2 जनरेशन। कह रहा है कि एक ऐसा प्लांट्स बताइए जो F2 जनरेशन में नहीं हो रहा है बट अपीयर हो रहा है F2 जनरेशन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़, इसको आप सही कर लीजिएगा, PDF इसके साथ मिलेगा तो वहाँ पे सही कर लीजिएगा। F1 में ये अपीयर्ड नहीं हो रहा है बट F2 में अपीयर हो रहा है, यानी कि स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट्स नॉट फाउंड इन F1 जनरेशन बट अपीयर्ड इन F2 जनरेशन, मेंशन द रीजन फॉर इट। तो इसके लिए F1 में कौन सा प्लांट अपीयर नहीं होगा, ड्वार्फ प्लांट अपीयर नहीं होगा। रीजन क्या लिखना, बिकॉज ड्वार्फ इज रिसेसिव, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सी का, मैंने सॉल्व यहीं कर दिया है। बी और ए को आप चाहे तो कॉपी पे अपने से खुद कर सकते हैं, कैसे करेंगे, लिसन। पेरेंटल जनरेशन में टाल लिखेंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे ड्वार्फ से। फिर जीनोटाइप लिखेंगे कैपिटल टी, प्योर ब्रेड है तो ये स्मॉल टी हो जाएगा, ठीक है। फिर गैमिट्स बनाएंगे तो एक गैमिट्स इससे बनेगा, एक गैमिट इससे बनेगा। F1 रिजल्ट करेंगे तो F1 रिजल्ट में कैपिटल टी स्मॉल टी सब आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अगर क्रॉस करवाना है कैपिटल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी से तो आप पुनेट का स्क्वायर बना सकते हैं इस तरह से। इसके लिए पुनेट का स्क्वायर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, कैपिटल टी एक साइड में भर देंगे और स्मॉल टी एक साइड में भर देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर आप मेंशन करेंगे, इसमें भरेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑल कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स ऑल टाल प्लांट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें तो किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब इनका सेल्फ क्रॉस करवा रहे हैं, पूरा मैं इरेज कर देना हूँ, F1 का सेल्फ क्रॉस करवा रहा हूँ तो क्या रिजल्ट मिल रहा है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डू द प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन लुक लाइक। F2 के ही बारे में सब पूछ रहा है। देखो स्टेट द रेशियो ऑफ टाल प्री प्लांट्स, यानी कि B का पूछ रहा है और A का पूछ रहा है, ठीक है। दोनों F2 का ही केस पूछ रहा है, ठीक है। F1 का कुछ पूछ नहीं रहा है। F और C जो क्वेश्चन वो मैंने बता ही दिया है तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। और F1 का सेल्फ क्रॉस करवा रहे हैं, पूछ रहा है कि F1 का अगर सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, यहाँ पे देखो if we now self cross the P plants of F2 generation then we obtain the F2 generation की जगह आप F1 करेंगे then we obtain the plants of F2 generation, यानी F1 का अगर सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, मैं वहाँ पे फोकस आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अब F1 जो है सेल्फिंग लिखेंगे, F1 सेल्फिंग में क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मल्टीप्लाई कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे मैं पुनेट नहीं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो कैपिटल टी आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी।
फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी का मल्टीप्लिकेशन जो है इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल टी आ जाएगा। यानी कि कौन टाल होगा कौन ड्वार्फ होगा, यहाँ पे देखते हैं, ये तो टाल होंगे, कोई डाउट नहीं, ये भी टाल होंगे, ठीक है, ये भी टाल होंगे, लेकिन यही तो ड्वार्फ हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डू द प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन लुक लाइक, तो लिखेंगे 75% टाल एंड 25% ड्वार्फ, ठीक है। 25% ड्वार्फ होगा, 75% टाल होगा। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, रेशियो पूछेगा तो 3:1 का लिख देंगे, 3:1 का टाल और ड्वार्फ का जो रेशियो पूछेगा 3:1 का लिख देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टेट द रेशियो ऑफ टाल प्लांट्स टू ड्वार्फ प्लांट्स इन F1, तो यहाँ पे रेशियो हो गया, ठीक है, हो गया ये हमारा पूरा कहानी, जीनोटाइप तो पूछ नहीं रहा है। तो ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड्स एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स, विच ऑफ द टू ट्रेड्स नॉट पास इन टू द नेक्स्ट जनरेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ये तो मैं पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि कौन सा ट्रेड्स एक्वायर्ड ट्रेड्स होता है और कौन सा ट्रेड्स इनहेरिटेड ट्रेड्स होता है, दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है कि एक्वायर्ड ट्रेड्स इसमें से कौन सा ट्रेड्स जो है नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होता है। तो एक्वायर्ड ट्रेड्स जो होता है, एक्वायर्ड ट्रेड्स, ये एक्वायर्ड ट्रेड्स जो होता है वो अगले जनरेशन में पास नहीं होता है। पेरेंट्स के पास कोई ट्रेड्स है, अगले जनरेशन में बच्चे को वो नहीं मिला तो वो होगा एक्वायर्ड ट्रेड्स, ठीक है। क्या होगा, एक्वायर्ड ट्रेड्स। तो एक्वायर्ड ट्रेड्स जो है पास नहीं होता है, केवल इनहेरिटेड ट्रेड्स ही पास होते हैं, केवल जो है इनहेरिटेड ट्रेड्स ही पास होते हैं। ये लास्ट टाइम वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया गया था और इस पे आपको फोकस करने थे, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो लेक्चर के साथ जो है कमेंट बॉक्स में यूट्यूब वीडियो लेक्चर में इसको आप बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है। और लाइव क्लास में भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आई होप इसको कर ले जाएंगे। देखो क्वेश्चन रिपीटेड है तो उस पर स्टार लगाइए, क्वेश्चन कॉपी में लिखिए, क्वेश्चन आपको इधर उधर भटकना नहीं है, क्वेश्चन कॉपी में लिखिए और उस पर स्टार लगाइए। क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया गया तो डबल स्टार लगाइए, 3 बार रिपीट किया गया तो 3 स्टार लगाइए, 4 बार रिपीट किया गया 4 स्टार लगाइए। इससे फाइनली आपको ये कंक्लूजन मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। जिस क्वेश्चन पे ज़्यादा स्टार इसका मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 को आसानी से आप कर ले जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। बस इस इनहेरिटेड ट्रेड, एक्वायर्ड ट्रेड्स ये तो कई बार बताया गया था, ये जो पोर्शन दिया है नया, इसमें लिखेंगे द एक्वायर्ड ट्रेड्स डू नॉट पास। अब पूछ रहा है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या देंगे, एग्जाम्पल दे देंगे कोई स्किल, ठीक है, कोई स्किल, इंटेलिजेंस या प्रोफेशन, ये 3 चीज़ें पास आउट नहीं होती है। यानी कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो पेरेंट्स ने गेन किया है ऑफस्प्रिंग में नहीं जाती है, उसमें स्किल हो सकता है, कोई कला सीख लिया, कुछ इंटेलिजेंसी, कोई दिमाग बढ़ गया, IQ लेवल बढ़ गया है, या फिर उसके पास कोई प्रोफेशन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो इसका मतलब इन्हें बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर हो जाएंगे, ठीक है। ये एक्वायर्ड ट्रेड्स होता है बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ों पे फोकस करेंगे, यानी कि हम इस वीडियो लेक्चर में क्या सीखे, क्वेश्चन नंबर 10 to 12 सीख लिया। यानी कि पार्ट 4 में हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड क्वेश्चन। थैंक यू।